Hello guys, good afternoon. So after long we are meeting, and from today onward our sessions will be regular routine without any delay. Just to confirm, let me know whether I am audible and visible or not. If everything is fine, we will continue. Okay, so that I can continue. Let me know whether I am audible and visible. Yes, thank you Kapil, thank you very much. I missed you guys a lot. Yes, I missed the class and all, but all the days like Tuesday, Friday, Saturday, Sunday and Monday, 4 days, they are literally exhaustive for me. I was going to the service center and to the laptop shop, everything. Okay, I'm good Muskan, thank you very much. So let's start our session without wasting our time. Let's crack UPSC CSE with India's largest learning platform, that is Unacademy. Wow, it feels so good. After so many days I am saying this. Okay, next. This is about me guys, Dr. Sachin Kadam. You know about me या भूल गए मुझे? 2-3 दिनों में भूल तो नहीं गए ना? ठीक है? Then on Unacademy you will get daily live classes. Every day we are going to conduct a daily live class from tomorrow. कल हमारे सारे सेशन होंगे. 8 AM का सेशन होगा, 11:15 AM का सेशन होगा, 1:30 PM का सेशन होगा और 3 PM का भी सेशन होगा. और कल हम टेस्ट लेंगे. ठीक है, हमारी टेस्ट्स बहुत सारी बाकी है, तो कल हम क्या करेंगे, टेस्ट कंडक्ट करेंगे 8 AM को. क्लियर? Fine. Then structured courses are available on Unacademy. These courses are available on Plus and Iconic platform. Okay, then live test and quiz is also available on Unacademy. Tomorrow we are going to conduct a test at 8 AM on Unacademy learning app. Okay, and in सबका आपको unlimited access मिल जाता है because everything is in recorded format. Okay, let's go ahead. These are India's top educators who will help you to crack UPSC CSE examination. You can see them. Karan, I'm extremely sorry. Your exam is near and this issue happened between 2 to 3 days. It is completely a technical issue. So that was beyond my hand. आपको पता है, अब मैंने नया लैपटॉप ले लिया, मतलब मेरा पुराना लैपटॉप रिपेयर हो रहा है एंड आई जस्ट कांट एक्सटेंड क्लासेस एवरी डे, क्योंकि वो रिपेयर होकर कब आएगा पता नहीं, और फिर भी रिपेयरिंग के बाद भी क्या प्रॉब्लम आएगी वी डोंट नो. दैट्स व्हाई आई बॉट अ न्यू लैपटॉप. ओके, सो दिस इज व्हाट आई, इतना मैं ज़्यादा सीरियसली लेता हूँ टीचिंग को. ओके, सो अनअकैडमी पे आपको मेंस आपका हो जाएगा, प्रीलिम्स आपका हो जाएगा, मेंस में जो ऑप्शनल है वो भी. एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपका सब कुछ हो जाएगा. ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन अ सिंगल सब्सक्रिप्शन गाइस. ओके, यशस्वी उतना आपको बियर करना पड़ेगा. बहुत ज़्यादा है क्या? इज दिस टू मच? इवन आई एम वर्किंग ऑन दिस. ओके, इको, इज इट टू मच? नाउ जब आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको एक पर्सनल मेंटर अलाउड किया जाता है, एंड दिस पर्सनल मेंटर विल एंश्योर you are studying regularly, you are studying in right direction, in right on right path. ये आपके डेली स्टडी प्लान बना के देंगे, मतलब सब कुछ रिलेटेड टू यूपीएससी प्लानिंग, ये सब पर्सनल मेंटर करेंगे. और पढ़ाने के लिए तो हम हैं ही एजुकेटर प्लस पे. ओके, सो व्हेन यू आर, सर इको एंड वॉल्यूम लो आ रहा है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लो है क्या? आई कैन वर्क ऑन द वॉल्यूम पार्ट. Just give me a minute. Now I guess volume is fine. मैंने 100% कर लिया है. थैंक्स करण, थैंक यू. सो अब आई गेस वॉल्यूम ठीक से आ रहा होगा. इको का पार्ट मैं जितना कर सकता हूँ उतना मैंने किया है. ठीक है, फाइन. सो 12 मंथ का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, इफ़ यू यूज़ दिस कोड SKUS तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा एंड यू विल पे ओनली 57,600. इन केस ऑफ 24 मंथ सब्सक्रिप्शन, if you use this code SKUS, it will give you 10% discount and you will pay only 89,100 rupees only. नहीं, लेकिन अभी तो ठीक है ना आशु वर्मा, अभी वॉल्यूम भी ठीक है, आपको सभी को ठीक से सुनाई दे रहा है ना? थोड़ा सा इको होगा क्योंकि ये रूम पूरा एम्प्टी है ना, तो इको का प्रॉब्लम आई नो दैट इज अ इशू, बट अब क्या कर सकते, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिए. आई विल. दीपक
Byokesh, if you are appearing for 2021 seriously, then you should go for iconic. Deepak, you should go for iconic, okay? And for that you can contact me. You know guys how to help Deepak to contact me. Okay, clear? So ये होगा iconic. If you are taking plus subscription 12 month के लिए instead of 44,000 you will pay only 39,100 rupees because SKUS code will give you 10% discount. And जो आपका 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन है you will pay only 57,600 because this code SKUS will give you 10% discount. Okay, clear? Let me help you out the equation. आई होप कि अब इको नहीं होगा ज़्यादा, थोड़े एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस ज़्यादा होते हैं इसमें, इसलिए मैं ये विंडो बंद करके I need to work in this month only with this eco. No, Navisha, from tomorrow everything will be there. From tomorrow everything will be there. Every class. चलिए, we already discussed stem cell therapy, correct? What is a stem cell? अगर आपको single word में stem cell को describe करना है तो which word you will use? Which word you guys will use? Quickly बता दीजिए मुझे. Yes, stem cell. Okay, fine. देखिए stem cell आपको तीन तरह की मिलेगी. एक होती है totipotent. Okay, I hope you know the difference between totipotent stem cell, pluripotent stem cell. देन एक होती है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल. जो अडल्ट होते हैं ना, दैट इज यू और मी, हमारे बॉडी में जो स्टेम सेल्स है ना, दीज आर मल्टीपोटेंट स्टेम सेल. ये प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल आपको सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलेगी, दैट इज इनर मास ऑफ जो था आपका उसमें, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में मिलेगी. और जो ये टोटीपोटेंट है ये भी आपको अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस जो थी ना, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस डेवलपमेंट की, उसमें आपको ये टोटीपोटेंट स्टेम सेल मिलेगी. सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स. ओके, कूल. यू नो एवरीथिंग अबाउट द स्टेम सेल. अच्छा, स्टेम सेल्स के कितने टाइप है? कैन एनीबडी टेल मी? यस, बेसिकली हम कहते हैं कि देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ स्टेम सेल. एक होता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल और दूसरी होती है अडल्ट स्टेम सेल. फिर हमने देखा था इसी में हमने देखा था कुछ स्टेम सेल होती है जिन्हें कहा जाता है मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स. एज वेल एज एक टर्म हमने स्टडी की थी बहुत प्रॉपरली, उन्हें हमने कहा था IPSC, मतलब इंड्यूस प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल. जो हम सोमैटिक सेल को कन्वर्ट करते हैं स्टेम सेल में, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंड्यूस प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, करेक्ट? तो ये अलग अलग टाइप्स हो गए आपके स्टेम सेल्स के. ओके, यस, आई टोल्ड यू द डिफरेंस बिटवीन टोटी एंड प्लूरी एंड मल्टीपोटेंट स्टेम सेल. एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल हो गई, टिश्यू स्पेसिफिक. ओके, क्लियर. सबको एकदम क्लियर है ना डिफरेंस बिटवीन टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट एंड मल्टीपोटेंट? सभी को क्लियर है डिफरेंस तीनों में? आई होप. अब ये जो इंड्यूस प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल है, वी कैन कन्वर्ट अ सोमैटिक स्टेम सेल, वी कैन कन्वर्ट अ सोमैटिक स्टेम सेल इनटू इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल. किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसे? बाय एक्टिवेटिंग 4 जीन, बाय एक्टिवेशन ऑफ 4 जीन. और 4 जीन्स कौन सी है? विच आर दोज 4 जीन्स? उन 4 जीन्स को हम टर्म यूज करते हैं उन चारों के लिए, यामानाका जीन्स. यस, यामानाका जीन्स, ये टर्म हम 4 जीन्स के लिए यूज करते हैं. क्लियर? तो ये 4 जीन्स स्टेम सेल को सोमैटिक सेल को कन्वर्ट करती है स्टेम सेल में. कूल. एप्लीकेशंस, सिग्निफिकेंस, कंसर्न्स एंड चैलेंजेस, ये भी हमने डिस्कस किया था. अब मुझे बस एक आंसर दीजिए, हमने बायोफार्मास्यूटिकल वाला पार्ट कितना कवर किया था लास्ट सेशन में? द पार्ट दैट वी कवर्ड अंडर बायोफार्मास्यूटिकल्स इन लास्ट सेशन, प्लीज टेल मी सो दैट वी कैन कंटिन्यू फ्रॉम दैट सेक्शन. उतने सेक्शन से हम कंटिन्यू करेंगे. ओके, और ये सेशन हमारा बायोटेक्नोलॉजी का लास्ट सेशन होगा. सो प्लीज लेट मी नो कि हमने कहाँ तक कवर किया था बायोफार्मास्यूटिकल. ओके, विनोद और बहुत ज़्यादा डिटेल में और गुड इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन आपने वो सेशन शायद अटेंड नहीं किया. पहले वाला हमने स्टेम सेल थेरेपी जिसमें पढ़ा. यू शुड वॉच दोज सेशंस, वेरी यूजफुल फॉर योर प्रीलिम्स 2020. दीज सेशंस आर वेरी वेरी यूजफुल. ओके, yes guys, please tell me, I am waiting for your answer.
so that I can continue. 2-3 स्लाइड हो गई थी सर. ओके फाइन. सो पहला फर्स्ट पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर इन बायोफार्मास्यूटिकल इज, बायोफार्मास्यूटिकल ये टर्म हम कौन से मेडिसिन के लिए यूज करते हैं? द मेडिसिन विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्सेज. मेडिसिन विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्सेज, उनके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं? बायोफार्मास्यूटिकल्स. करेक्ट, करेक्ट. देन सेकेंड हमने देखा था, देखिए, this medicine can be a protein, this medicine can be DNA, this medicine can be RNA, it can be a sugar, anything. लेकिन ये फर्स्ट प्राइमरी रूल क्या है कि दैट प्रोडक्ट शुड बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ बायोलॉजिकल सोर्स. प्रोडक्ट शुड बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ बायोलॉजिकल सोर्स. दैट इज मस्ट, दैट इज मस्ट. ओके, वेरी गुड यशस्वी. सो अब तक जो हमने बायोफार्मास्यूटिकल के अंडर बायोलॉजिकल सोर्स से जो प्रोडक्ट हमने बनाया है उसका नाम है ह्यूमन इंसुलिन. ये हमने ऑलरेडी बना लिया है, ह्यूमन इंसुलिन विच इज अ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड अंडर बायोलॉजिकल, अंडर बायोफार्मास्यूटिकल्स. क्लियर? चलिए आगे. ओके फाइन. यस, दिस आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू. अब देखिए यहाँ पे बायोलॉजिकल सोर्स कैन बी अ नॉर्मल, मतलब अ बायोलॉजिकल सोर्स जो होता है वो नॉर्मल भी हो सकता है या फिर इट कैन बी अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसे उन्होंने यहाँ पे टर्म यूज की है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स. ओके, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट, यस, दिस ऑलरेडी एक्सप्लेन, इट इज बायोलॉजिकल, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल. अब इसमें देखिए, इट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड और एक्सट्रैक्टेड और सेमी सिंथेसाइज्ड. ये वर्ड याद रखिए. Even if that product is semi-synthesized from biological source, that is a biopharmaceutical. मतलब इसका मतलब ये है कि सपोज हमने एक प्रोटीन प्रोड्यूस किया, दिस प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्स, लेकिन बाद में हमने क्या किया, इस प्रोटीन को, प्रोटीन में कुछ एडिशंस किए, सिंथेटिक एडिशंस. तो ये क्या हुआ? सेमी सिंथेसाइज्ड. आधा हमने बायोलॉजिकल सोर्स में सिंथेसाइज किया एंड रेस्ट हमने उस पर क्या की, अलग अलग मतलब प्रोसीजर की आउट ऑफ दिस बायोलॉजिकल सोर्स. तो वो भी क्या होगा? दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल्स. इट कैन बी अ वैक्सीन. आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मोस्ट ऑफ द वैक्सीन्स, मोस्ट नहीं, ऑल ऑफ द वैक्सीन्स, ऑल ऑफ द वैक्सीन्स, दीज आर बायोफार्मास्यूटिकल्स. इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ. कुछ हम वैक्सीन्स देते हैं ना विच आर यूज टू प्रिवेंट डिसीज. डिसीज ना हो, टू प्रिवेंट डिसीज, डिसीज ना हो, इसलिए आप जो वैक्सीन देते हो उसमें हम क्या करते हैं? व्हाट वी इंजेक्ट इन द पेशेंट्स बॉडी, दीज आर किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर हाफ किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. मतलब जिनकी वजह से डिसीज होता है उन्हीं को आइदर किल करके या हाफ किल करके, मतलब वीक करके हम उन्हें इंजेक्ट करते हैं पेशेंट के बॉडी में या इंडिविजुअल के बॉडी में. दैट इज वैक्सीन. तो ये क्या हुआ? ये डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं? वी आर यूजिंग अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो वैक्सीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल. वन फर्स्ट एंड द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल. ब्लड कंपोनेंट, एलर्जन, सोमेटिक सेल, जीन थेरेपीज, टिश्यूज, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट सेशन में. नेक्स्ट, नाउ दीज लिविंग सोर्सेज कैन बी अ ह्यूमन, it can be an animal, it can be a plant, it can be a fungus or it can be a microorganism, anything. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. फर्स्ट, पेनिसिलिन. पेनिसिलिन इज अ antibiotic that is extracted or produced by a Penicillium notatum, which is a fungi. माइक्रोस्कोपिक है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. ओके, आप अपनी वॉल्यूम थोड़ी बढ़ा लीजिए सर प्लीज. गोमिका, इतना कम आवाज आ रहा है. लेट मी चेक. No, it is a very clear sound, Gomika. You should increase either your device voice or use head. If you are using headphones, then might be problem. मेरे मोबाइल पे तो एकदम प्रॉपर आवाज आ रही है. Guys, is this there is a problem with the volume? Yes, it is produced from the fungus. तो penicillin क्या हुआ? Penicillin is an example of biopharmaceutical. So many medicines. There are so many medicines that we use, that we produce or extract from the living organism. बहुत सारे एंटीबायोटिक हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं. दैट इज बायोफार्मास्यूटिकल. ओके, चलिए आगे.
फाइन, बायोलॉजिकल मेडिसिनल प्रोडक्ट और थेराप्यूटिक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ये हो गया। ओके, मैंने आपको ATMP याद रखने के लिए कहा था। आई टोल्ड यू टू रिमेंबर ATMPs। ओके, व्हाट इज ATMP? एडवांस्ड थेरेपी मेडिसिनल प्रोडक्ट। आपको ये कीवर्ड फॉर एवर याद रखना है, क्या? एडवांस्ड थेरेपी मेडिसिनल प्रोडक्ट्स। प्लीज रिमेंबर दिस प्रॉपरली। इसका रीजन है गाइस, इसका रीजन है कि ये है तो बायोफार्मास्यूटिकल का एग्जाम्पल, लेकिन इसके नाम से आप गेस नहीं कर सकते, इसके नाम से आप गेस नहीं कर सकते। कल्पना इज सेइंग नो सर, कपिल इज सेइंग नो सर, स्मृतिका राजू इज सेइंग नो सर, मुस्कान प्रीति इज सेइंग नो सर। व्हाट एग्जैक्टली? मतलब वॉइस इज नॉट क्लियर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सेड एवरीथिंग इज क्लियर, बट ओके, आई डोंट नो मैंने क्या पूछा था जिसका आप आंसर नो दे रहे हो। 17 सेकंड का लैग ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, दैट्स व्हाई अनअकैडमी इज बेटर। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है? बायोफार्मास्यूटिकल्स के हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल्स। एडवांस्ड थेरेपी मेडिसिनल प्रोडक्ट, एडवांस्ड थेरेपी मेडिसिनल प्रोडक्ट। क्लियर? चलिए आगे। See, these are the examples which are extracted from living systems: whole blood, organ, tissue transplant, stem cell therapy, antibodies, passive immunization, human breast milk, fecal microbiota. Everything is extracted from living organism. So these are examples of biopharmaceuticals. These are examples of biopharmaceuticals. Okay. क्लियर? चलिए आगे। सी कुछ एग्जांपल्स, द प्रोडक्ट्स विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्योंकि ये हमने, जैसे आपको यहाँ पे ये जो इरिथ्रोपोएटिन दिख रहा है ना, दिस इज अ हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। तो ये इरिथ्रोपोएटिन प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है? विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वी कैन एंश्योर कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे आर प्रोड्यूसिंग इरिथ्रोपोएटिन। ओके, इसके अगर आपको याद होगा ना, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था या शो भी किया था, GEAC जो है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी। ओके, GEAC अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स मैंने आपको शो किए थे, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। दीज आर द अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स अप्रूव्ड बाय GEAC। इसमें से सारे के सारे ये बायोफार्मास्यूटिकल्स का पार्ट है, देख लीजिए। दीज आर पार्ट ऑफ द बायोफार्मास्यूटिकल। ह्यूमन इंसुलिन, दिस इज पार्ट ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल। इरिथ्रोपोएटिन, पार्ट ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल। हेपेटाइटिस B वैक्सीन बायोफार्मास्यूटिकल है। ओके, देन ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, इंटरल्यूकिन, ग्रैन्युलोसाइट। यहाँ आप देख सकते हो मोस्ट ऑफ द जो है ना हार्मोन्स है या एक्टिवेटिंग प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट आर अप्रूव्ड बाय द GEAC, जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोडक्ट है ये पूरी की पूरी लिस्ट हमने GEAC में की थी, ठीक है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट तो आपको पता ही, ये है हो गया आपके बायोफार्मास्यूटिकल के एग्जांपल फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ GEAC। क्लियर? चलिए लेट्स स्टार्ट विथ आवर प्रोडक्ट चैप्टर। तो यहाँ देखिए, सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हमने क्या प्रोड्यूस किया? इरिथ्रोपोएटिन प्रोड्यूस किया, ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस किया, इंसुलिन प्रोड्यूस किया। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो ये एक हो गया। वी आर टॉकिंग अबाउट द बायोफार्मास्यूटिकल। बायोफार्मास्यूटिकल कैन बी प्रोड्यूस्ड थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, क्लियर? ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। वी आर जस्ट इन दिस केस वी आर यूजिंग recombinant DNA molecule to produce different biological product, for example insulin through E. coli। तो ये इसी तरह हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से कर सकते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, यहाँ पे ये टर्म मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की है, इफ यू रिमेंबर, मैं यहाँ फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। मोनो मीन्स सिंगल, मोनो का मीनिंग क्या होता है? सिंगल। ओके, मोनोक्लोनल मतलब ये एक ही पर्टिकुलर एंटीजन के लिए है।
देयर आर डिफरेंट 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। IgA, IgM, IgG, ये अलग अलग एंटीबॉडीज हमने देखी हुई है। तो ये जो एंटीबॉडीज है, जो 5 मैंने आपको बताई थी हमारे बॉडी में, वो कॉमन है। मतलब दीज एंटीबॉडीज कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल एंटीजेंस। लेकिन यहाँ पे जब आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की बात करते हो, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, तो उस केस में क्या होता है, दिस एंटीबॉडी इज वेरी वेरी स्पेसिफिक, बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होती है। मतलब ये सिर्फ एक ही पर्टिकुलर एंटीजन को बाइंड करेगी। इन्हें कहा जाता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, एंड वी कैन प्रोड्यूस दीज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और इन द सेल ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? सर प्लीज डू टेल रिगार्डिंग CA फॉर प्रीलिम्स मिड सितंबर और टिल अगस्त ओनली। 10th सितंबर इज फाइन, 10 और 15 तक भी जाने की जरूरत नहीं, 10 सितंबर तक का कर लो, दैट इज मोर देन इनफ। राहुल मिश्रा, यू कैन डू करंट अफेयर्स फॉर प्रीलिम्स टिल 10th सितंबर ओनली। ओके, सो दीज आर वेरी वेरी स्पेसिफिक। देखिए, इफ यू रिमेंबर वी डिस्कस्ड हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, याद है? मेरा एक अलग सेशन दिया था मैंने हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी पे। दिस टेक्नोलॉजी वाज इन न्यूज बिकॉज ऑफ कोविड-19 डिसीज। फाइन, नेक्स्ट। अब देखिए, तीसरा एक तरीका होता है जिससे हम बायोफार्मास्यूटिकल प्रोड्यूस कर सकते हैं, दीज आर फ्यूजन प्रोटीन्स। ये भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही प्रोड्यूस करते हैं, फ्यूजन प्रोटीन्स। क्लियर? सो वी कैन प्रोड्यूस बायोफार्मास्यूटिकल्स बाय रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, we can produce biopharmaceuticals in the form of monoclonal antibodies, and or we can produce biopharmaceuticals through fusion proteins। चलिए आगे। ओके, नाउ ये जो रेड बायोटेक्नोलॉजी, यू ऑलरेडी नो रेड बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? व्हेन यू आर यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी एज अ एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, उसे हम क्या कहते हैं? रेड बायोटेक्नोलॉजी। दिस यू ऑलरेडी नो, इसे डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। नाउ this is very 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 important for your prelims 2020 as well as 2021, because this is something new that is happening in the field of medicine. This is very new thing and which is very important। अब देखिए, आपको biological ये term पता है। This term is used for those medicines which are produced by living organisms। Am I correct? Biological, this term is used for those medicines which are produced by living organisms। Am I correct or not? Yes, obviously I am correct। ठीक है, these are produced by living organism। और एक term है यहाँ पे biosimilar। Now I am going to explain you biosimilar। Here you need to remember one thing very very clearly, biological is a different concept and biosimilar is different, but they are same also। मतलब इनमें similarities बहुत ज़्यादा है लेकिन इनमें कुछ differences भी है। You need to remember the difference between a biological and a biosimilar, which is very crucial for your preliminary examination। So one by one हम इन्हें discuss करते हैं, slide by slide जाएंगे। Listen to this very very carefully, it is important। Okay, biosimilar, it is a biologic medical product। मतलब मैं ये कह सकता हूँ biosimilar is an example of biological। Can I say this? Biosimilar is an example of biologicals, क्योंकि हम यहाँ पे टर्म हम क्या कह रहे हैं? It is a biologic medical product। It is a biologic medical product। तो biosimilar falls under the category of biologicals। Okay, fine। Then see, this is highly similar to another already approved biological medicine। अब यहाँ पे एक बहुत ही क्रूशियल चीज़ आपको समझनी है, वो चीज़ कौन सी है? आई विल एक्सप्लेन यू, जस्ट लेट मी टेक अ न्यू स्लाइड ताकि मैं आपको बहुत प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकूँ। ओके, चलिए मैं अभी आपको नई स्लाइड पे ये एक्सप्लेन करता हूँ। करेक्ट? तो अब हम यहाँ पे कह रहे हैं बायोसिमिलर इज सिमिलर टू अनदर ऑलरेडी अप्रूव्ड बायोलॉजिकल मेडिसिन। सो सपोज यहाँ पे देखिए,
see, this is A. This A medicine is used to reduce fever, ओके, और यू कैन से टेम्परेचर कम करने के लिए ये ए मेडिसिन यूज होता है, ठीक है। ए मेडिसिन में जो कंटेंट है ना, ये ए जो नाम है, दिस इज ब्रांड नेम, दिस इज ब्रांड नेम, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। लेकिन ए में जो कंटेंट है ना वो है पैरासिटामोल, ओके, क्लियर ये वाला। फिर आता है आपका बी, हेलो अशोक पॉल, बी, दिस इज ऑल्सो यूज टू रिड्यूस टेम्परेचर और फीवर, ये भी आप फीवर कम करने के लिए यूज कर रहे हो, ओके, टेम्परेचर या फीवर रिड्यूस करने के लिए यूज कर रहे हो। अच्छा, बी में भी क्या है, कंटेंट पैरासिटामोल ही है। नाउ टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी? ओनली डिफरेंस इज इन द ब्रांड नेम, दोनों का जो ब्रांड नेम है वो अलग है, दिस इज द ओनली डिफरेंस, दिस इज द ओनली डिफरेंस, एग्रीड, एग्रीड। और दूसरा डिफरेंस क्या हो सकता है, ए इज प्रोड्यूस्ड बाय वन फार्मास्यूटिकल कंपनी एंड बी इज प्रोड्यूस्ड बाय अनदर फार्मास्यूटिकल कंपनी, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। फिर हम अलग अलग, तो इनमें क्या डिफरेंस है, ओनली द डिफरेंसेस ऑफ द ब्रांड नेम। सपोज, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सपोज यहां पे, सपोज यहां पे जो ए है, दिस ए इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्स कंपनी, ए एक्स कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, और बी जो मेडिसिन है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाई कंपनी, ठीक है। ये तो अलग अलग कंपनी से, लेकिन जो ओरिजिनल मेडिसिन है ना, मतलब पैरासिटामोल कैन रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर और फीवर, ये फाइंड आउट किया था एक्स ने, मतलब रिसर्च किसने किया, एक्स ने किया। सपोज एक्स ने रिसर्च किया था 1990 में, फाइंड आउट किया एक्स ने कि पैरासिटामोल कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस द टेम्परेचर, ओके। तो 1990 से 2010 तक पैरासिटामोल का जो पेटेंट है ना, पैरासिटामोल एज अ मॉलिक्यूल विच कैन बी यूज्ड टू reduce the temperature or body temperature, this patent was held by company X। तो पेटेंट किसके पास है, X कंपनी के पास। तो 1990 से, ठीक है, 90 से 2010 तक X कंपनी ने अकेले ने ही पैरासिटामोल सेल की है अंडर द ब्रांड नेम A। तो अब लोगों को पता क्या है, कौन सा मेडिसिन या कौन सा ब्रांड नेम रिड्यूस करता है टेम्परेचर, तो A, तो ये हो गया ब्रांडेड मेडिसिन, ओके, दिस इज ब्रांडेड मेडिसिन, क्लियर ये वाला पॉइंट। लेकिन हुआ क्या कि 2010 में पेटेंट पीरियड खत्म हुआ, 2002 में पेटेंट पीरियड खत्म हुआ। नाउ एनी फार्मास्यूटिकल कंपनी कैन प्रोड्यूस पैरासिटामोल, तो बी वाई कंपनी ने क्या किया, पैरासिटामोल ही प्रोड्यूस किया, बट इन द नेम ऑफ बी, ब्रांड नेम क्या रखा उसका, बी, और वाई कंपनी 2011 से सेल कर रही। अब मार्केट में दो है, ए जो है दिस इज अ ब्रांडेड मेडिसिन, एंड बी जो है ये हुआ जेनरिक मेडिसिन। ब्रांडेड मेडिसिन नॉर्मली आइदर पेटेंटेड मेडिसिन होते, या फिर ये मेडिसिन वो कंपनीज प्रोड्यूस करती है जिन्होंने ओरिजिनल पेटेंट होल्ड किया था उस प्रोडक्ट का, क्लियर। ये दोनों में डिफरेंस, ब्रांडेड और जेनरिक में सभी को डिफरेंस पता है। ब्रांडेड मेडिसिन दे आर नॉर्मली सोल्ड और प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी व्हिच एक्चुअली इन्वेंटेड दैट मेडिसिन, एंड जो जेनरिक होते हैं दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय एनी कंपनी, ओके, यस करेक्ट सौम्य। ये ब्रांडेड और जेनरिक हुआ। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको कहा था बायोलॉजिकल और बायोसिमिलर, बायोलॉजिकल एंड बायोसिमिलर, ओके। अब यहां देखिए, ये जो बायोलॉजिकल है, दिस बायोलॉजिकल इज अ ब्रांड नेम, बायोलॉजिकल इज अ ब्रांड नेम, एंड बायोसिमिलर इज अ जेनरिक वर्जन ऑफ दैट प्रोडक्ट। पहला डिफरेंस समझ में आया, मतलब
बायोलॉजिकल जो है ना, दिस मेडिसिन इज biosimilar, it's similar to another already biosimilar, it's similar to another already approved biological medicine. मतलब जो बायोलॉजिकल मेडिसिन है वो ऑलरेडी अप्रूव्ड है, उसी की अगर आप कॉपी बनाकर सेल कर रहे हो तो दैट इज बायोसिमिलर, दैट इज बायोसिमिलर। हो गया ये वाला पॉइंट क्लियर सभी का? सभी का पॉइंट क्लियर हो गया बायोलॉजिकल और बायोसिमिलर में डिफरेंस? आई होप एवरीबडी गॉट इट। ओके, देखिए बायोसिमिलर्स आर अप्रूव्ड अकॉर्डिंग टू द सेम स्टैंडर्ड्स, so there is no compromise in quality, there is no compromise in safety, there is no compromise in efficacy। बायोलॉजिकल मेडिसिन और बायोसिमिलर में कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ओके ठीक है, चलिए आगे देखिए, बायोसिमिलर्स आर ऑफिशियली अप्रूव्ड वर्जन्स ऑफ ओरिजिनल इनोवेटर प्रोडक्ट्स and can be manufactured when the original product's patent expires। आप बायोसिमिलर का सर प्री में क्वेश्चन कैसे आएगा इस टॉपिक पर? दे विल सिंपली आस्क करण व्हाट इज अ बायोसिमिलर, यू कैन सिंपली आंसर दैट बायोसिमिलर दीज आर द मेडिसिन्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बाय अ बायोलॉजिकल सोर्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो प्रोड्यूस किए जाते हैं, दीज आर बायोसिमिलर। और अगर थोड़ी डेप्थ में जाकर उन्होंने पूछ लिया, आपको बस इतना याद रखना है, बायोसिमिलर्स आर द प्रोडक्ट्स व्हिच आर लाइक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बट विदाउट पेटेंट। बायोसिमिलर आर प्रोड्यूस्ड व्हेन पेटेंट पीरियड एक्सपायर्स, इट्स लाइक दैट। ओनली डिफरेंस बिटवीन अ बायोलॉजिकल मेडिसिन एंड अ बायोसिमिलर इज बायोलॉजिकल मेडिसिन विल बी patented and biosimilar will be produced once that patent period expires। I hope everybody got it। अब दूसरी की जो इस स्लाइड में दी है आपको, पहला पॉइंट आपको दिया था, बस फर्स्ट स्लाइड ने आपको क्या बताया था, ये जो बायोसिमिलर होते हैं, बायोसिमिलर्स होते हैं, यस आयुषी, दे आर जेनरिक मेडिसिन बट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ बायोलॉजिकल सोर्स, और these are the generic medicines which are the copy of biologicals, which are the copy of biological। okay clear। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है बायोसिमिलर में, these are the copies of biologicals। दूसरा पॉइंट आपको बायोसिमिलर में याद रखना है, बायोसिमिलर्स they are produced after the expiry of patent period, they are produced after the expiry of patent period। क्लियर, ये सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है बायोसिमिलर के बारे में। एंड थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है कि बायोसिमिलर्स दे आर जेनरिक वर्जन ऑफ बायोलॉजिकल्स। बायोसिमिलर मेडिसिन की बायो अवेलेबिलिटी पर रिसर्च हुई थी, जिसमें कहा गया था कि जेनरिक मेडिसिन की बायो अवेलेबिलिटी ब्रांडेड मेडिसिन से कम हो सकती है। आशु वर्मा, दैट कैन हैपन, बट आपको यहाँ पे ये डिफरेंस और सिमिलैरिटी दोनों में याद रखनी है। These are the generic versions of biologicals, that's it। This is all about biosimilar। and remember biologicals ज़्यादा न्यूज़ में नहीं थे, लेकिन biosimilar was in current affair, it was in news। so please be very careful whenever you come across biosimilar, they can ask a question on biosimilars। okay चलिए आगे। okay generic drugs जो होती है, generic drugs of the more common small molecule type, biological generally exhibit high molecular complexity। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि बायोसिमिलर दे आर सिंपली द जेनरिक वर्जन ऑफ बायोलॉजिकल, सपोज प्रोडक्ट ए इज अ बायोलॉजिकल मेडिसिन, ओके, प्रोडक्ट ए इज अ बायोलॉजिकल मेडिसिन, प्रोडक्ट बी इज अ बायोसिमिलर ऑफ प्रोडक्ट ए का ये बायोसिमिलर है, ठीक है। उसी तरह X जो है इट इज अ मेडिसिन विच इज यूज्ड फॉर हार्ट डिसीज, दिस इज यूज्ड फॉर हार्ट डिसीज, ओके, और इसी का ये ब्रांडेड है। X क्या है, ब्रांडेड मेडिसिन है, और Y क्या है, Y भी हार्ट डिसीज के लिए यूज होता है, लेकिन इट इज अ जेनरिक वर्जन। तो अगर आप X और Y की कंपोजिशन देखोगे ना, आइडेंटिकल है, X और Y की कंपोजिशन आइडेंटिकल है, बिकॉज X एंड Y these are both are synthetic,
मतलब ये दोनों के दोनों सिंथेटिक तरीके से लैब में बनाए गए हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू ए एंड बी, दोनों सेम डिसीज के लिए यूज होंगे, दोनों में क्वालिटी सेम होगी, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, बी कैन नॉट बी एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ए। उसका रीजन है, ये जो बायोलॉजिकल मेडिसिन है, ये ए जो है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग ऑर्गेनिज्म जब अपने सेल में, और जब लिविंग ऑर्गेनिज्म जब अपने सेल में कोई भी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है ना, दैट इज हाईली कॉम्प्लेक्स। तो आपको प्रीलिम के लिए याद रखना है, प्रीलिम के लिए याद रखना है कि ये जो आपका बायोसिमिलर है, इट कैन नॉट बी द एग्जैक्ट और आइडेंटिकल कॉपी ऑफ बायोलॉजिकल, इतना याद रखिए प्रीलिम्स के लिए। तो पहला पॉइंट क्या है, बायोसिमिलर जो है बायोलॉजिकल जैसे ही काम करते हैं, लेकिन जो आपकी जो बायो सिमिलर है, दे कैन नॉट बी एग्जैक्ट आइडेंटिकल कॉपी ऑफ बायोलॉजिकल्स। इंस्टेड जो जेनरिक मेडिसिन है, दे आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द ब्रांडेड मेडिसिन। ओके, दे आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द ब्रांडेड मेडिसिन। आई होप यू गाइज गॉट इट। ठीक है, सो दिस इज अबाउट बायोसिमिलर। ओके, दो मैंने आपको कंपैरिजन किया था, बट बायोसिमिलर इज नॉट रिगार्डेड एज अ जेनरिक ऑफ अ बायोलॉजिकल मेडिसिन, रिमेंबर दिस। Though it is actually like generic medicine only, but it is not regarded as a generic version of biological medicine. This is mostly, उसका रीजन देखिए, natural variability and more complex manufacturing of biological medicines do not allow, remember this, do not allow an exact replication of molecular microheterogeneity। फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं, जो ब्रांडेड मेडिसिन है, ब्रांडेड और जेनरिक, इनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं होता, ओनली डिफरेंस इज ऑफ द कॉस्ट। इसकी कॉस्ट लो होती है, इसकी कॉस्ट हाई है। प्रोडक्शन सेम तरीके से होता है, ठीक है, प्रोडक्शन सेम तरीके से होता है, उसके बाद उसकी क्वालिटी सेम है, एफिकेसी एवरीथिंग इज सेम। बट व्हेन इट कम्स टू बायोलॉजिकल और बायोसिमिलर, मैंने आपको पहले ही बता दिया, बायोसिमिलर कैन नॉट बी अ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ बायोलॉजिकल बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि बायोलॉजिकल जो मॉलिक्यूल है ना, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो उतनी, उनमें जो कॉम्प्लेक्सिटीज है ना, वो एग्जैक्ट हम कॉपी नहीं कर सकते बायोसिमिलर्स में। दैट्स व्हाई बायोसिमिलर कैन नॉट बी एग्जैक्ट कॉपी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, लेकिन जेनरिक इज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ब्रांडेड मेडिसिन एक्सेप्ट द कॉस्ट। समझ में आया? इसलिए यहाँ पे ये टर्म यूज कर रहे हैं, बायोसिमिलर इज नॉट रिगार्डेड एज अ जेनरिक ऑफ बायोलॉजिकल मेडिसिन, क्योंकि बायोसिमिलर की कॉस्ट भी अलग हो सकती है, बायोसिमिलर की कॉस्ट भी अलग हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं कि बायोलॉजिकल की कॉस्ट ज्यादा है और बायोसिमिलर की कम है, नो, सिर्फ इनमें कॉमन क्या है, बायोलॉजिकल की अगर आप कॉपी बनाओगे तो उसे आप कहोगे बायोसिमिलर, उसे आप क्या कहोगे, बायोसिमिलर। हो गया क्लियर सभी के? आप एक बार पीडीएफ रीड कर लीजिएगा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हो गया क्लियर। चलिए आगे, रेड बायोटेक्नोलॉजी मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। दीज आर सम एरियाज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ रेड बायोटेक्नोलॉजी। रेड बायोटेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स, यस और नो? यस, इट कैन बी यूज्ड टू फॉर इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, यस, and it can be used to develop new drugs. Red biotechnology can be used to develop new drugs. Then red biotechnology can be used for molecular diagnostic technique. मुझे बताइए, what we do in PCR, polymerase chain reaction में हम क्या करते हैं? We make multiple copies of DNA. We make multiple copies of DNA. Yes or no? अब ये मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए बनाने का मेन काम किसका है? इट इज डन बाय द सेल थ्रू रेप्लिकेशन। लेकिन हम वही सेल की जो फंक्शन है रेप्लिकेशन का, वो हमने क्या किया? सर ये बायोसिमिलर लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं बनाते क्या? फिर नहीं यशस्वी, वो सिंथेटिकली बनाते हैं हम, ठीक है। सो ये रेप्लिकेशन की प्रोसेस को हमने पीसीआर में कॉपी किया और हम वी आर मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए। तो PCR isn't it application of biotechnology? Isn't PCR a application of biotechnology? Yes or no? Yes. अगर PCR टेक्निक बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है तो मुझे बताइए
We use PCR for what? We use PCR technique for diagnosis. और इसमें हम क्या डायग्नोसिस कर रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इन अ प्रेजेंस ऑफ डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल इन द सैंपल. तो वी आर यूजिंग पीसीआर टेक्निक फॉर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस. And PCR is possible only if tools from the biotechnology are available for replication of DNA. That's why हम यहाँ कहते हैं आपकी जो सलाइवा टेस्ट है that is an example of molecular diagnostic technique. क्योंकि सलाइवा टेस्ट में हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम क्या कर रहे हैं? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. नितिन साली हम क्या कर रहे हैं? वी आर फाइंडिंग आउट द प्रेजेंस ऑफ आरएनए इन द सलाइवा. तो मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक हुई, पीसीआर मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक हुई, आरटीपीसीआर मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक हुई, इलाइजा टेस्ट मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक हुई. जितने भी आप डायग्नोसिस करते हो ना, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक एंड दैट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ओनली बिकॉज ऑफ रेड बायोटेक्नोलॉजी. ओके, तो ये देख लीजिए आप, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स में हम क्या करते हैं? वी एनालाइज द बायोलॉजिकल मार्कर्स इन जीनोम एंड प्रोटियोम. जीनोम तो आपको पता ही है, प्रोटियोम का मतलब होता है ऑल द प्रोटीन्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी. और जो एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में होती है ना, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोटीन. तो एंटीबॉडीज का प्रेजेंस भी तो हम मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक में करते हैं. हम वेदर एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट और नॉट, ये भी तो हम मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक में ही करते हैं. ओके, so this is all about the molecular diagnostic techniques. Okay, they are this technique is used to diagnose disease, to monitor disease, to detect risk, decide which therapies will work best for an individual patient. So this is all about molecular diagnostic techniques. Okay, clear? Okay, molecular diagnostic technique से हम क्या कर सकते हैं? We can come up with the personalized medicine. अब personalized medicine के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? You need to analyze the genome. ये हमने डिस्कस किया है कि हाउ इट इज पॉसिबल टू गेट अ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन थेरेपी. ठीक है, दिस टेक्निक इज यूज्ड इन इन्फेक्शियस डिसीज, फॉर एग्जांपल कोविड-19, इन ऑन्कोलॉजी, फॉर एग्जांपल कैंसर, in human leukocyte antigen. So this is all is done where we do molecular diagnostic technique or we use molecular diagnostic techniques. Okay, इसमें हम क्या करते हैं? molecular diagnostic technique में either we find out the presence of DNA or RNA or protein, that is antibodies. ये जो आपकी सीरम टेस्ट हो रही है ना, सीरम सर्वे चल रहा है, that is an example of molecular diagnostic technique. Okay, clear? So this is about molecular diagnostic technique. This is how it is done. You can read, and if you don't understand, ask me. Okay, then we can use red biotechnology in regenerative therapy. Best example is stem cell therapy. ये डिटेल में किया है हमने, मैं सिर्फ ये क्विक सम अप कर रहा हूँ red biotechnology को. We already did this in stem cell therapy. तो regenerative therapies में हम red biotechnology यूज कर सकते हैं. नो नितिन साली, पर्सनलाइज्ड मेडिकल मीन्स कॉमन मेडिकल या सर? नहीं, इट इज अ बिट डिफरेंट. ओके, रीजनरेटिव थेरेपी देखिए, इसमें क्या हम करते हैं? वी रिप्लेस, इंजीनियर और रीजनरेट ह्यूमन और एनिमल सेल, टिश्यूज और ऑर्गन्स टू रिस्टोर और एस्टेब्लिश नॉर्मल फंक्शन. इट इज सिंपल, सब लोग समझ सकते हैं. इसके वर्ड में ही क्या है, इसके हेडिंग में ही क्या है? रीजनरेटिव. तो रीजनरेट करने का ये काम करते हैं. ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन हम इसमें करते हैं, फाइन. इसमें हम स्टेम सेल यूज कर सकते हैं, प्रोजेनिटर सेल यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज अबाउट रीजनरेटिव थेरेपी. एंड लास्ट, वी कैन यूज रेड बायोटेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी देखी, हमने क्रिस्पर कैस9 टेक्निक देखी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक है. एवरीथिंग इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ रेड बायोटेक्नोलॉजी. So that's it for the day, guys. Okay, so guys, what you need to remember this code SKUS for 10% discount on Unacademy subscription. Whether you are taking plus subscription, whether you are taking iconic subscription, आप अगर नीट का ले रहे हो, जेई का ले रहे हो, IIT का ले रहे हो, किसी भी एग्जाम का अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप क्या करोगे? यू विल यूज दिस कोड SKUS. ओके, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल. ये जो पीडीएफ है आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. अच्छा, मुझे ये बताइए, राइज 2 जो है ना, ये जो हम 1:30 PM का सेशन लेते हैं, इसकी कहाँ तक की पीडीएफ मैंने अपलोड की है? लास्ट पीडीएफ में कौन सा टॉपिक था, ये मुझे बताइए, ताकि मैं अभी ये सेशन खत्म होने के बाद बाकी सारी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा. ओके, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल. माय सेशंस एवरी डे 8 AM
every day 8 a.m. on Unacademy Learning app. These are free sessions. Tomorrow we are going to conduct a test on Unacademy Learning app. दूसरा सेशन होता है मेरा 11:15 AM का, ये YouTube पे होता है और इसमें मैं करंट अफेयर्स कवर करता हूँ, साइंस टेक एंड एनवायरनमेंट इको के, तो ये सेशन भी कल होगा. ओके, थैंक यू पूजा देवी. We are resuming classes from tomorrow itself. Every class will resume from tomorrow. Okay. ओके, यस राहुल मिश्रा, रेगुलर क्लास कल 8 AM का होगा, 11:15 AM का होगा, देन 1:30 PM का भी सेशन होगा कल राइज 2 का. ये सेशंस होते हैं संडे टू थर्सडे. दीज सेशंस आर फ्रॉम संडे टू थर्सडे और इसमें मैं यूट्यूब पे ये सेशन लेता हूँ. ओनली साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर किया जाता है. नविश चौरसिया, PDFs आर अवेलेबल ऑन दिस टेलीग्राम चैनल. प्लीज हेल्प नविश टू कॉन्टैक्ट मी गाइज. ओके, और उसके बाद फिर जो है फोर्थ सेशन मेरा 3 PM का होता है, जो आज नहीं है. 3 PM वाला भी सेशन हम कल से रिज्यूम कर लेंगे. ये 3 PM का सेशन संडे टू थर्सडे 3 PM को होता है और 9:30 AM को होता है फ्राइडे और सैटरडे को. फ्राइडे एंड सैटरडे ये 9:30 AM को होता है. सो इसमें हम डिस्कस करते हैं पॉलिटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स. Polity through constitutional article. Okay guys, so that's it for the day. Thank you very much for your patience and for your support. We are meeting again tomorrow at 8 AM on Unacademy Learning app with one of the beautiful test. नहीं, उसका मुझे टॉपिक का नाम बता दीजिए. उस 28 की PDF में टॉपिक कौन सा कवर किया था और आई विल चेक इट आउट. ठीक है, so thank you very much guys. See you tomorrow by 8 AM sharp with a beautiful test on Unacademy Learning app. Till that time, bye bye, take care.